Good morning, everyone, once again. And yesterday we have discussed what is the relationship between elasticity AR and MR and probability R, total revenue curve. We have seen what is the nature of these curves and what are the characteristics of these curves, and we have tried to derive the relationship mathematically, or you can say algebraically. We have derived the relationship, how the AR, MR, and elasticity are related to each other. Today, we will see the graphical presentation of the same relationship, all right, along with its implications. Today, we are supposed to see this and further. उससे आगे फिर देखेंगे कि what remains to be discussed in this topic. तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक है वो यही है कि ये रिलेशनशिप अपने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ दिस ग्राफिकली. लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ दिस ग्राफिकली. How these things are related with each other, and things which are related with each other, and how we can interpret their results. Let me draw this side. Students are joining. Well, this is origin point. Here we will plot AR and respective MR curve. In this plane, we will draw the total revenue curve along with the output produced. Same is the case over here. अब देखो हमने ये दोनों ही कर्व जो है ये डिफरेंट बनाए हैं एक तरीके से, कि टोटल रेवेन्यू कर्व को अलग प्लेन में मैं बना रहा हूँ और एवरेज रेवेन्यू और एमआर को अलग प्लेन पे मैंने बनाया. उसका रीज़न सिंपल है कि एक ही प्लेन पर हम ये सारे कर्व बनाएंगे तो वो फिगर हौच पौच हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी. हमें सिंप्लीफाई करके बनाना है ताकि हम उनके रिलेशन को आसानी से समझ सकें. ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ द एवरेज रेवेन्यू कर्व फर्स्ट. सपोज was suppose this is the average revenue curve. This is the average revenue curve, and this would be the midpoint on the average revenue curve. Let us mark, and this point will correspond here. This point will further go upwards.
point. This will coincide. This is the origin point. Let's draw the total revenue curve. Total revenue curve would be maximum here, and then it start declining, and it will decline till it reaches 0 at this point. Total revenue curve. This is average revenue curve, and its corresponding marginal revenue curve is a little bit different. Let me have some other color. Let's make it through red. So this is the marginal revenue curve. Corresponding marginal revenue curve. Corresponding marginal revenue. Now look, this is total revenue curve TR, and this is AR, and this is MR curve. ठीक है, अब let us see what happens here. Let me write the equation for the relationship. We can express the relationship in two ways. One is this, another there are many ways. इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये A से भी लिख सकते हैं. तो मैं तीनों ही लिख देता हूँ. अब तीनों को लिख देता हूँ, फिर उसको समझ लेते हैं क्या मतलब. सबसे पहला है कि MR इज इक्वल्स टू होगा P विद इन ब्रेसिस 1 माइनस 1 अपॉन E, या फिर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू होगी AR अपॉन में AR माइनस MR. ठीक है, तो अब इसको हम ध्यान से देख लेते हैं. सपोज करो आप लोगों ने अपनी 12th क्लास में पढ़े होंगे मेथड्स की, जो डिमांड कर्व का सेंट्रल पॉइंट होता है उसमें इलास्टिसिटी आपको पॉइंट मेथड में ऐसे बताई जाती है कि जो पॉइंट है उससे लोअर पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व और अपर पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व का रेशो हमें लेना होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग? यस सर. तो आपको ये लेना होता है. तो इस मिड पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी बताते हैं 1. आप 12th क्लास में पढ़ के आए, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब है लोअर पार्ट भी हाफ है और अपर पार्ट भी हाफ है. ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो इसकी लेंथ है उससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपका इलास्टिसिटी 1 आ जाएगी. तो इसका मतलब जब इलास्टिसिटी 1 होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा. यहाँ 1 मैंने पुट किया, इलास्टिसिटी 1 पुट करूँगा, 1 1 जा 1, 1 में से 1 जाएगा 0. अब सपोज करो मैं इलास्टिसिटी 1 पुट कर देता हूँ. ठीक है, तो इलास्टिसिटी 1 पुट करने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो MR है वो क्या आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ AR, जो भी AR होगा उसमें से 1 माइनस 1 अपॉन में 1 होगा. ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 आ गया, 1 माइनस 1 इज 0. तो MR क्या होगा, जो भी प्राइस है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर MR कम्स आउट टू बी 0. MR 0 हो जाएगा. तो अब देखो, जब इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है. यहाँ पर देखिए इस एक्सिस पर आ रहा है, इस पॉइंट पर MR इज 0. इस पॉइंट, इससे देखते हैं इससे क्या आता है. इस फॉर्मूले से हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं जब हमें AR और MR गिवन हो. अब इस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी का पता करना है, तो MR 0 है हम जानते हैं, तो AR की जो भी कोई वैल्यू होगी तो EAR इज इक्वल्स टू क्या होगा, AR अपॉन में AR माइनस 0 लिख दूंगा मैं. तो देयरफॉर E इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगी AR अपॉन में AR. तो AR से AR कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1. तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू होगी 1.
तो ये देखो, इसका मतलब दोनों फॉर्मूले से हमारे कंप्लायंस हो रहा है ना इस रूल का, कि जो मिड पॉइंट होता है डिमांड कर्व का या एवरेज रेवेन्यू कर्व का, उसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी 1 होती है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, ये समझ आया? यस सर, यस सर। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट हम देखें टोटल रेवेन्यू कर्व पर, तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, इससे ऊपर टोटल रेवेन्यू की कोई वैल्यू नहीं है। देखो मैक्सिमम है ना यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। इज दैट ओके? हेलो यस सर। ठीक है, यस सर। ये केस 1 हो गया। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड देखते हैं इस तरफ। सपोज करो ये पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी let me draw some other point. ये पॉइंट यहाँ पर, ये सपोज कर लो ये इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने जो मेथड्स पढ़े हैं इन सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। यस और नो? हेलो, इन सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इस से लेफ्ट में होते ही लोअर पार्ट बड़ा हो जाएगा और अपर पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन क्या होती है, 1 होती है सभी पॉइंट्स पर। अब जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। अब देखो इस पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं ये, इन सब पर मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना। तो लेट्स सी कि अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा। केस सेकेंड, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं एम आर इज इक्वल्स टू है क्या, P विद इन ब्रेसेस 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सपोज करो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर एम आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में 2, और एम आर इज इक्वल्स टू हो गया P इंटू में 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ रह जाएगा, इंटू में 0.5 पॉजिटिव। तो यहाँ P की जो कुछ भी वैल्यू हो, सपोज ये पॉइंट है तो P की वैल्यू ये हो गई यहाँ पर। सपोज करो ये है 6, तो 6 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा एम आर, 3। यस और नो? तो एम आर पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस रेंज में आप एम आर पॉजिटिव रहेगा आपका एम आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे रिलेशन से भी देख सकते हैं कि दूसरा रिलेशन क्या है कि एम आर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी। तो एम आर पॉजिटिव है, ए आर भी पॉजिटिव है, और हम जानते हैं ए आर ग्रेटर देन एम आर से। तो इलास्टिसिटी अगर निकालनी है हमें तो क्या आ जाएगा कि ए आर मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया है, ये हमने कितना लिया है, ये 3 लिया ना, ये ए आर 6 लिया है ना, तो एम आर हमारा 3 आया है, तो ए आर 6 हो गया, यहाँ पर 6 माइनस 3, तो कितना आ गया ये इलास्टिसिटी, 6/3 2, इलास्टिसिटी 2 आ गई। इज दैट ओके? हेलो, इस पॉइंट पर बेटे समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ से कंप्लायंस हो रही है। लेट अस टेक सम अदर पॉइंट। अब देखो इसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एम आर इज लेस देन 0, एम आर नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट के बाद नीचे ये सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है इन सभी पॉइंट्स पर एम आर इज नेगेटिव होती है। तो एम आर अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में क्या होगा, ये देखो थर्ड केस लेते हैं कि इस केस में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक इलास्टिसिटी लेस देन 1 है।
लेस देन 1 मतलब 1 से कम है, तो केस 3 देखते हैं क्या आता है लेस देन 1 अगर हम लेते हैं। तो लेट्स हैव केस 3 MR इज इक्वल्स टू है P इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन P और P इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन ये लेस देन 1 है इलास्टिसिटी, तो मैंने 0.5 लिख दिया यहाँ पे, 0.5 इज लेस देन 1। तो P इंटू में 1 माइनस 0.5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये यहाँ 2 आ गया, 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा P इंटू में -1, तो यानी कि MR की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी, -P आ गया ना ये। हेलो हेलो, यस सर। तो नेगेटिव हो गया तो MR नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, ये है, इस पॉइंट पर देख लीजिए। अगर मैंने ये पॉइंट लिया है 4 लिया है सपोज, तो इस पर MR की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये 4 लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये -4, ये वैल्यू -4 हो जाएगी। भाई अगर मैं प्राइस को 4 कंसिडर करूंगा तो -4 हो जाएगी ना। अब देखते हैं इलास्टिसिटी कितनी आ रही है। तो AR है 4, AR 4 है, MR है -4, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4/8, इलास्टिसिटी 0.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसका और इस पॉइंट पर जब हम प्लॉट करते हैं, होल्ड ऑन, इस पॉइंट पर जाकर जो ये लास्ट पॉइंट है एक्सट्रीम, इस लास्ट पॉइंट पे जाके इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है, इनफाइनाइटली इलास्टिक हो जाती है, और इस पॉइंट पर आकर इलास्टिसिटी 0 हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट कर रहा है, और इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि जब इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू व्हाट डू यू कॉल इट, नेगेटिव है। ठीक है। अब इसका हम टोटल रेवेन्यू के साथ भी इसका रिलेशन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। हेलो स्टूडेंट, क्या इस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस स्टूडेंट्स। नो सर। सर रेवेन्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? आगम, आगम कहते हैं। आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है? हेलो सर इकोनॉमिक्स नहीं थी सर 12th में। क्या नाम है बेटे आपका? मुकेश नाम सर। मुकेश, आप इसी सेक्शन में हो आप? कल भी आपने पूछा था ना शायद, क्लास का क्या? यस सर। बेटे हिंदी में इसको आगम कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। वैसे रेवेन्यू का मतलब होता है आपको जितनी भी सेल करके जितना भी पैसा आपको मिला, आम भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं। मान लो आपने क्या कहते हैं कि आप मान लो किसी की भी, अगर मान लीजिए किराने की दुकान है और उसने 10 किलो चीनी बेची, और 10 किलो चीनी बेची उसने 200 रुपये की, तो 200 रुपये उसका रेवेन्यू हो गया। ठीक है। यस सर। सेल्स प्रोसीड्स कल भी मैंने बताए थे आप लोग। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस सर। पूछिए, क्या नाम है? सर कनिकावत। हाँ कनिका, पूछो। सर मुझे पूछना था कि जैसे AR अपॉन में QX की हम वैल्यू E लेते हैं स्लोप कैलकुलेट करके, वैसे क्या सर TR AR सर जैसे सर वो क्वांटिटी की टर्म्स में ले रही हूँ ना, आई मीन जैसे P/Q E इलास्टिसिटी की टर्म्स में वैसे लिखते हैं ना सर?
तो सर मैं पूछ रही हूँ क्या टी आर अपॉन में क्यू एक्स को भी हम कुछ सिग्निफाई करते हैं या उसका स्लोप कुछ सिग्निफाई नहीं करता? मैं समझा नहीं आपकी बात को। ओके सर, मैं दोबारा बोलती हूँ। हम्म, सर मैं कह रही हूँ कि जैसे हम जब स्लोप की वैल्यू निकालते हैं एक तो मिनट, ए एक आर एक एक मिनट होल्ड करो, मैं लिखता हूँ, देन यू विल सी। भाई लास्ट क्लास में हमने लिखा P इज इक्वल्स टू सी माइनस जी क्यू, ठीक है, यही था ना। यस सर। एम आर यस हमारा सर। जो हमने इससे डिराइव किया था वो आया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी माइनस टू जी क्यू, ठीक है, जब हमने स्लोप को कंपेयर किया था। और टोटल रेवेन्यू हमारा आया था सी क्यू माइनस जेड क्यू स्क्वेयर, यही था भाई। हेलो, यस सर। हाँ Yes, अब sir. पूछो, अब पूछो क्या सवाल है आपका। सर मैं ये पूछ रही हूँ हम्म, कि जैसे जो अगर हम क्वांटिटी की की टर्म्स में ले तो ए आर अपॉन में क्यू एक्स जो होता है उसकी वैल्यू ई होती है। हम मान सकते हैं सर कि जैसे पी बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, या सर नहीं ले सकते हम? मेरे को समझ ही नहीं आ रही आप पूछना क्या चाह रहे हो। मान लो इलास्टिसिटी है P अपॉन में Q, और यहाँ है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। अब इसमें पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर जैसे अभी आपने जो स्लोप बनाया है ऊपर ए आर टी आर इन अपॉन क्यू एक्स का और ए आर एम आर वर्सेस क्यू एक्स का, तो मैं सर स्लोप ये कहाँ पूछ बनाया रही हूँ। मैंने, स्लोप कहाँ बनाया, अपॉन करके स्लोप कहाँ बनाया, मुझे बताओ जरा, कौन से पेज नहीं पर। सर, हम इसी पेज पे, सर इसी पेज इसी पे। पेज पे स्लोप कहाँ बनाया हमने, स्लोप तो कहीं नहीं बनाया। सर सर जो कर्व लिया है हमने, कर्व हाँ में हाँ हमने ई की वैल्यू लिखी है अलग अलग जगह पे कर्व पे। हाँ 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 तो लिखिए। सर वो ऐसे ही तो लिखी है ना कि ए आर अपॉन में क्यू एक्स जो नहीं होता है। नहीं, फिर सर हमने कैसे लिखी है? आपने ये, मेरे ख्याल से आप कौन से कोर्स से हो, क्या नाम सर मैं है। मैथ्स ऑनर्स, सर कनिकावत। सर कनिकावत, मैथ्स ऑनर्स से हूँ मैं। ठीक है। सर मेरे पास इको नहीं थी। हाँ। हाँ ट्वेल्थ में इको नहीं थी ना, इसीलिए समझ रहे हैं। कोई नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि हमने कैसे लिखा है। ओके सर, थैंक यू सर। समझ गया मैं आप क्या पूछ, मतलब योर क्वेश्चन इज, लेट मी वन मोर क्लैरिफाई एंड द अदर्स विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट। आप ये कह रहे हो हाउ डू आई हैव रिटन दिस वन ओवर हियर, है ना। यस what सर। what are what is the base of writing 1 over here and greater than, less than 1 over here, greater than 1 over here, infinity over here and 0 over here? This is the your question na. यस सर। All right, क्वेश्चन को सीधे तरीके से पूछो ना, आप लोग इतना वो घुमा रहे हो तो मुझे ही समझ नहीं आ रही कौन सा स्लोप कह रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, लो, सॉरी सर। नो नो इश्यूज, नो इश्यूज। You can write price over here, quantity over here, and let's assume this is the, this is the point A, this is point B. This is it. Now, in such a situation, what is being suggested is this, that elasticity can be calculated at any point by taking the ratio of lower part of the segment
divided by upper part of the segment. Lower part of the segment divided by upper part of the segment. कि जो सेगमेंट है डिमांड कर्व की, जिस भी पॉइंट पर अगर हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर हम होंगे, उस पॉइंट से लोअर पार्ट और अपर पार्ट का अगर रेशो हम ले लेंगे तो वो रेशो विल सजेस्ट अस द इलास्टिसिटी. दिस इज व्हाट इट मीन्स. ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाता है आप लोगों को. ठीक है, ओके सर. ओके सर. अब आगे देखिए कैसे होगा. ये होगा कैसे, इसके पीछे का फर्दर लॉजिक क्या है उसको समझ लेते हैं. सपोज मैं पॉइंट लेता हूं, ये मिड पॉइंट पे देखते हैं इसके. सपोज ये पॉइंट है M. ठीक है, अब यस सर. फर्स्ट केस देखो. फर्स्ट केस क्या है? एट पॉइंट M पर हमें इलास्टिसिटी पता करनी है ना. तो M पॉइंट हम कह रहे हैं मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि बीच में. यस और नो? हेलो. यस सर. ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लोअर सेगमेंट, दैट मीन्स दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस डिमांड कर्व AB इन 2 इक्वल पार्ट्स. दिस इज व्हाट इट मीन्स. यस सर. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? एट पॉइंट M MB equals AM. This is what it means. यस सर. यस सर. तो therefore elasticity would be equals to what? Lower part of the segment upon my upper part. Lower part is MB, upper part is AM. As they both are same, so it will comes out to be 1. So elasticity at point E would be 1. Got it? ओके सर. यस सर. Now same logic applies further. Suppose we have a point. Suppose इससे एक मिनट है, सेव हो रहा है. सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया, एक ये N पॉइंट ले लिया. अब M पॉइंट नहीं है, अब N पॉइंट है. अब अगर N पॉइंट पर देखता हूं मैं, यहां अगर देखूं एट पॉइंट N पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो लोअर पार्ट इज ग्रेटर देन द अपर पार्ट. यस और नो? हेलो. यस सर. तो देयरफॉर NB इज द लोअर पार्ट एंड Yes, sir. AN इज द अपर पार्ट. तो NB इज ग्रेटर देन AN. Therefore elasticity would be what? NB upon में AN. अब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा रेशो. हेलो. यस सर. आप मैथ्स के यस सर. स्टूडेंट हो. Therefore Yes, और sir. इलास्टिसिटी would be greater than 1. अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, आगे की बात. अब ये यहां पर ग्रेटर देन 1 क्यों आई है? क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा हो गया अपर सेगमेंट से. यस और नो? यस सर. अब सपोज करो ये पॉइंट M था, इस पॉइंट के एडजस्टेंट एक और पॉइंट में बना देता हूं. मैं दूसरे कलर से बनाता हूं ताकि डिस्टिंक्शन रहे. मैं एक ये इसके बिल्कुल एडजस्टेंट पॉइंट बना देता हूं ये. तो इसके एडजस्टेंट होते ही ये मिड पॉइंट शिफ्ट कर गया. इसका मतलब, हेलो, यस सर. जैसे ही मिड पॉइंट लेफ्ट को हल्का सा शिफ्ट करेगा तो लोअर सेगमेंट बड़ी होनी शुरू हो जाएगी रिलेटिवली अपर सेगमेंट के. यस सर. तो दैट मीन्स एट ऑल द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ M पॉइंट के लेफ्ट में जितने भी ये पॉइंट्स हैं यहां से यहां तक, इन सब पर ये सेम रूल अप्लाई करेगा. ठीक है. यस सर. तो इसका यस मतलब सर. इन सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी. इन सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है. और Okay, sir. इस पॉइंट पर क्या होगी? अब A पॉइंट पर देख लेते हैं. एट पॉइंट AB is the lower segment. यस सर. अपर सेगमेंट क्या है? नथिंग, 0. 0. ठीक है. Therefore
elasticity would be what? AB upon में 0. However, That's infinity. that Yes. that is not defined basically, but if we take the limit, then it will comes out to be infinity. Yes or no? Anything divided by Yes, 0 sir. is not defined mathematically, but उसका लिमिट लेंगे और उसको रिज्यूम करेंगे तो we treat it as infinity. Yes or no? तो यहाँ इसलिए इलास्टिसिटी sir. हम बोल देते हैं infinity है. ठीक है. से अब इसके लेफ्ट में चलते हैं. सपोज करो ये पॉइंट है S, तो एट पॉइंट S क्या हो गया? सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए. SB is less than AS. Therefore, elasticity would be SB divided by AS. Yes or no? Or elasticity would be Yes, less sir. than 1. सेम यही लॉजिक यहाँ अप्लाई करो कि अगर ये लेफ्ट को हल्का सा शिफ्ट ना करके राइट को शिफ्ट कर जाता है ये पॉइंट, तो लोअर पार्ट छोटा होना शुरू हो जाती और ये यहाँ से यहाँ तक सभी पॉइंट्स पर लेस देन 1 रहेगी इलास्टिसिटी. गॉट इट? Yes, sir. अब बी पॉइंट पर देख लेते हैं. एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो लोअर सेगमेंट इज नथिंग, 0. अपर Yes, sir. सेगमेंट इज व्हाट? AB, B, AB. Yes, upper segment is AB. Yes, sir. Therefore, elasticity would be 0 upon AB. That comes out Yes, to be sir. 0. 0 divided Zero, by anything. yes. So therefore, at this point, elasticity would be 0. So this is the logic I have written. I wrote this elasticities over here. Now let's see the another logic behind this. Why we can write? If you go by this relationship, look, the same thing, same values can be written with this relationship also. ओके जो मैंने यह करके भी दिखाया है कि आप ले लीजिए मिड पॉइंट पर लेंगे तो मिड पॉइंट पर ए आर की जो भी वैल्यू है, अब देखो इस रिलेशन से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं. कैसे? सपोज करो ये मेरा एम आर जो है, रेड कलर से ड्रॉ करता हूं MR. ये एम आर हो गया. ठीक है. अब हमारे पास रिलेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू है ए आर अपॉन में ए आर माइनस एम आर. यही है भाई. ठीक है. Yes, sir. अब सपोज करो हम जानते हैं कि हर पॉइंट पर ए आर इज ग्रेटर देन एम आर. हर एक पॉइंट पर ए आर इज Yes, sir. ग्रेटर देन एम आर. अब इस रिलेशन से भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखो. ये देखिए, अब पॉइंट M पर मुझे कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट M. तो अब इस केस में मुझे ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास AR और MR की वैल्यू होनी चाहिए, तभी मैं कर पाऊंगा. यस और नो? Yes, sir. तो सपोज करो Yes, sir. AR की वैल्यू है यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं हाइपोथेटिकली. सपोज कोई भी वैल्यू है, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना. देखो नेगेटिव एक्सिस तो ये है, ये पॉजिटिव एक्सिस है. यस और नो? तो Yes, sir. AR की वैल्यू क्या है यहाँ पर? AR की वैल्यू है एक तरीके से, सपोज कर लो 10 मैंने एज्यूम कर लिया. MR कितना है यहाँ पर? 0. ये देखो MR की वैल्यू देखो Yes, क्या sir. है? 0 होगी. तो इसका मतलब एट पॉइंट M AR is 10 and MR is 0. What would be the elasticity? 10 upon 10 minus 0. That will comes out to be 10 upon 10. That will comes out to be 1. Is that okay? Yes, sir. ठीक है. Let us take the situation at point N. कि N पॉइंट पर क्या है.
n पॉइंट पर जो AR की वैल्यू है, लेट दिस इज 12, ठीक है। अब एट पॉइंट n AR is 12. Now what is the value of MR? This would be the value. पॉजिटिव, यस सर, ठीक है से ना? 8. You can have any value. Let's say 8 is there. MR is 8. So in this case, elasticity would be what? 12 upon 12 minus 8. माइनस करो, इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? 12 अपॉन में 4, आई थिंक 4 3 ज़ा 12. इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 आ गई ना, 3. ठीक है, यस सर. तो इन सब पॉइंट्स पे यही लॉजिक आ जाएगा. अब ए पॉइंट पर देख लेते हैं. ए पॉइंट पर AR एंड MR आर सेम बिकॉज वी बोथ हैव बीन emerging फ्रॉम दिस पॉइंट. यस और नो? यस सर. ठीक है, तो सपोज करो दिस इज 14, यू नो, बोथ आर 14. तो एट पॉइंट A, AR is 14, MR is 14. Well, then elasticity comes out to be 14 upon में 14 minus 14. Again 14 upon में 0 आ गया ना, infinity जाएगा. यस सर. ओके सर. ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, इधर S पॉइंट पर ले लेते हैं. तो S पॉइंट पर AR की वैल्यू क्या है? सपोज करो 6 है और MR नेगेटिव है ना? यस सर. MR नेगेटिव है. नेगेटिव कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लो है 3 है, यू नो, -3. तो एट पॉइंट S AR is 6, MR is -3. Therefore elasticity would be equals to what? 6 upon में 6 माइनस विद इन ब्रेसेस -3, यही होगा. तो 6 अपॉन Yes, में sir. 6 + 3 हो जाएगा. 6 अपॉन में 9 हो गया. अब 6 अपॉन में 9 कर लीजिए. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 0.67 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली. Yes, sir. इलास्टिसिटी आ गई, तो लेस देन 1 हो गई. अब इस पॉइंट पे देखो, बी इस point- पॉइंट सर. AR 0 हो गया. यस सर. एक मिनट होल्ड कीजिए, आई थिंक स्क्रीन समथिंग रॉन्ग हो सकता है. 0 हो गया. ये MR थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा. ये MR हो गया सपोज. तो अब अगर B पॉइंट पर हम हैं, सपोज वी आर एट दिस पॉइंट B, तो B पॉइंट पर AR तो 0 है. MR की वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू, सपोज -5. ठीक है, तो एट पॉइंट B व्हाट इज द सिनेरियो? B पॉइंट पर सिनेरियो क्या है? B पॉइंट पर सिनेरियो है कि AR is 0 and MR is -5. तो इलास्टिसिटी वुड बी अपॉन 0 अपॉन में 0 माइनस विद इन ब्रेसेस -5. तो 0 अपॉन में 5 इज नथिंग बट 0. इज दैट ओके? यस सर. 0. तो either ways you can draw this relationship. That's not a problem. Once you have, I think I have clarified your doubt. यस सर. थैंक यू वेरी मच सर. Anybody else has any doubt? Yes. Shall we proceed? यस सर. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, so we have seen how the AR, MR and elasticities are related along with the TR.
लेट अस सी इट्स फर्दर इम्प्लीकेशंस, इसकी आगे की अब इम्प्लीकेशंस को हम देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, फर्दर इम्प्लीकेशंस को कैसे समझेंगे, लेट अस सी दैट। Let us see that. I'll draw this figure once again, and then we'll see. This is the origin point. Here we'll write AR and this is MR. This is output. This is total revenue. Okay, and let's draw the AR curve. This is the AR curve, average revenue curve, A and B. These are the 2 points, and let's assume this is the midpoint. And from here onwards, let's draw the curve. साथ निभाना साथिया बना दूं तेरा। अरे भैया कौन बोल रहा है साथ निभाना साथिया? हेलो, कौन बोल रहा है ये? स्टूडेंट्स, बेटे कौन बोल रहा था? नाम बताइए अपना। हेलो, who was this guy? हेलो, am I audible? यस सर। हाँ, कौन था ये स्टूडेंट? Yes, कौन था? sir. कौन बोला था? मुकेश तुम बोल रहे थे? नो सर, किसने बोला फिर ये साथ निभाना साथिया बना दूंगा? किससे बातें कर रहे हैं ये? साहिल गर्ग नाम का सर। साहिल गर्ग। साहिल गर्ग, क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? साहिल गर्ग, साहिल गर्ग, आर यू लिसनिंग? हेलो, साहिल गर्ग, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। क्या बात है, किससे बातें कर रहे थे तुम? और मैं नहीं था, वो भाई था मेरा, क्या नाम है, मैंने स्पीकर पे कर रखा था उस वक्त, अब अच्छा, ईयरफोन लगा ली मैंने। चलो कोई नहीं बेटे, ध्यान रखो, क्लास चल सर रही है सर, ना। हाँ, हाँ जी ध्यान सर रखो। सर। ओके सर। चलिए, अब आगे देखते हैं। ये हो गया, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हम देखते हैं। ये पॉइंट, ये तो टोटल रेवेन्यू वुड बी समथिंग लाइक दिस, and then it start declining and increases to this point. This is TR curve, this is AR curve, and let's have corresponding MR curve. This is MR curve. As we already know, this is at this point TR is maximum. At this point elasticity is 1. At this point MR is 0. To the left of this, MR is positive, and to the right of this, MR is negative, and to the left of this,
elasticity is greater than 1, and to the right of this elasticity is less than 1. अब फर्स्ट केस देखते हैं। अब कोई आपसे पूछे, सपोज करो आप अपॉइंट हो गए, सीईओ हो आप किसी कंपनी में, आपकी जॉब लग गई, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये हमारा डेटा है हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस का, प्राइसेस से रिलेटेड, टीआर से, एआर से, एमआर से रिलेटेड, और ये इलास्टिसिटी है। आप बताइए कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएं या कम करें, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अब आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, अब आप मुसीबत में आ गए कि कंपनी ने मुश्किल सवाल पूछ लिया, अब इसका क्या जवाब है। तो देखिए इसका कैसे जवाब देंगे। सपोज करो आप इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ जे पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी है QJ और प्राइस हो गया PJ प्राइस पर QJ क्वांटिटी सेल की जा रही है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना रिसीव हो रहा है? टोटल रेवेन्यू रिसीव हो रहा है TRJ, मैं इसको भी यहाँ J पॉइंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। अब सपोज करो आप सजेस्ट कर देते हो कि प्राइस बढ़ा देते हैं, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, ये देखो आपने सजेस्ट किया प्राइस बढ़ा देते हैं। PJ से हमने ये H पॉइंट इसको मैंने मान लिया, आपने कहा प्राइस को PH कर देते हैं बढ़ा के। जब आपने प्राइस बढ़ाने का सजेशन दिया तो हमारा आउटपुट सेल हुआ QH फर्म का, और फर्म को जो रेवेन्यू रिसीव हुआ सेल्स से, वो रेवेन्यू रिसीव हुआ एक तरीके से, ये H पॉइंट है TRH। अब ये देखो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, आपने सजेस्ट कर दिया प्राइस को इंक्रीज करो, पर टोटल रेवेन्यू तो डिक्रीज कर गया। हेलो, कंपनी कहेगी कि भाई तुमने तो सेल्स रेवेन्यू भी घट गए हमारे और क्वांटिटी सेल्स भी घट गई, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये तो इनएफिशिएंट डिसीजन हो गया ना। हेलो, यस सर। ठीक है। अब इसी तरह अगर सपोज करो आप सजेस्ट करते कि प्राइस को कम कर देते हैं, तो क्या होता है? लेट अस सी दैट। एक मिनट है, जरा ये ऑटो सेव होता है ना कई बार, तो ये हैंग करता है सिस्टम। होल्ड ऑन। सपोज करो आपने सजेस्ट किया होता प्राइस कम कर देते हैं, ये H था, ये J है, लेट्स टेक इट एज K पॉइंट। तो प्राइस कम करते आप कितना? PK, और क्वांटिटी सेल्स हो जाती कितनी? QK। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होता? दिस इज K पॉइंट। TRK, यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू बढ़ गया प्राइस कम होने पर, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ और हमारी क्वांटिटी सोल्ड भी बढ़ गई, सेल्स भी बढ़ गई, सेल्स प्रोसीड्स भी बढ़ गई, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड MR इज पॉजिटिव, देन what happens is, in that case what happens is कि if there is increase in price, this will lead to decrease in total revenue, and if there is decrease in price, that will lead to increase in total revenue. Am I right? यस सर। कि जब यस सर।
जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो और मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होता है, ये हमें मालूम है, हमने अभी कल से हम इसी चीज़ को देख रहे हैं। तो इस केस में प्राइस इंक्रीज करेगा तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, और प्राइस डिक्रीज करेगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को हम एक तरीके से अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम पार्शल उससे भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं कि डायग्राम से, कि पार्शल डायग्राम में क्या होगा कि इसको इस तरह के ना बना के ऐसे एक सिंगल डायग्राम की फॉर्म में, जैसा आपकी रीडिंग्स में दिया हुआ है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। ये प्रणय खोसला, वाई यू आर ज्वाइनिंग सो लेट? हेलो प्रणय, प्रणय, आर यू लिसनिंग? प्रणय, डू यू हियर मी? Pranay, do you hear me or should I remove you from the class? Hello? Pranay? Sir, Pranay has written in the chat. What he has written? Net issues. Try to be in time. टाइम से आया करो बेटे। नेट इश्यूज हो तो मैसेज के थ्रू ग्रुप पे लिखो कि मेरे नेट इशू है, बाकी इन्फॉर्म रहे सभी कि लेट ज्वाइन करोगे क्या है। बाकी टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास को। इसको हम एक ग्राफिकली भी बना सकते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके रीज़न देखिए। सपोज करो ये डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसके इस पॉइंट पर थे हम पहले, यहाँ थे सपोज करो, ये जे पॉइंट हो गया एक तरीके से। मैं इन्हीं पॉइंट्स को बना रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्वांटिटी क्यू जे है और प्राइस पी जे है, ठीक है। प्राइस को इंक्रीज किया एच पॉइंट तक, तो प्राइस हो गया पी एच और क्वांटिटी हो गई क्यू एच। अब बेटे आप ध्यान से देखो इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस के बढ़ने पर रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हेलो, यस सर। ठीक है ना, कि ज्यादा होगा। और ये आप देख भी रहे हो कि प्राइस में सिर्फ इतना वेरिएशन आया, क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएशन आया। तो इसलिए क्या होता है कि प्राइस में ज्यादा वेरिएशन आया और क्वांटिटी में, प्राइस में कम वेरिएशन आया और क्वांटिटी में ज्यादा वेरिएशन आया। इसका मतलब चेंज इन पी, डेल्टा पी तो थोड़ा सा बड़ा है पर डेल्टा क्यू बहुत ज्यादा कम हो गया है रिलेटिवली। यस और नो? यानी कि डिक्रीज इन डेल्टा क्यू इज मोर देन इंक्रीज इन डेल्टा पी। हेलो, यस सर।
ठीक Yes, है। sir. इसलिए क्या होता है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज करता है। टोटल रेवेन्यू क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये इतना हिस्सा यहाँ से, ये क्वांटिटी में इतनी कमी आई है, ये यहाँ से ये इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यानी कि प्राइस के कम होने से जो रेवेन्यू में कमी आई है वो तो इतनी आ गई, और रेवेन्यू में एडिशन इतना हुआ है और सब्ट्रैक्शन इतना हुआ है। तो एडिशन सिर्फ इतना हुआ और सब्ट्रैक्शन इतना हुआ, तो ये देखो सब्ट्रैक्शन का जो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज की जो क्वांटिटी है, वो डिक्रीज का जो क्वांटम है वो ज़्यादा है, बॉक्स ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर ये माइनस और ये सिर्फ प्लस हुआ है। इज दैट ओके? हेलो, यस Yes, सर। sir. ठीक है। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। सेकंड पॉइंट, व्हेन, अब ये इसमें बन गया। अब इसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब लेस देन 1 पे देखते हैं। सपोज करो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था एच के, हमने ले लिया, लेट अस अज्यूम एस पॉइंट है। तो एस पॉइंट पर थे हमारे, प्राइस था पी एस, क्वांटिटी थी हमारी क्यू एस। अब आपने कहा प्राइस को डिक्रीज कर दो, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो डिक्रीज किया तो आप यहां पर आ गए। सपोज करो एल पॉइंट है ये, तो पी एल और ये क्यू एल। अब आप देखो कि प्राइस में डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बट इस एस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू क्या था? रेवेन्यू क्या था? टी आर एस। और एल पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? टी आर एल। तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। यानी कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा। और यहां पर ले लेते हैं पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं क्या है, एल हो गया, एम ले लें, एम पॉइंट हो गया, ये एम पॉइंट है, तो ये हो गया पी एम, और यहाँ ये क्वांटिटी हो गई क्यू एम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया। यहाँ पर टी आर एम देखो इंक्रीज हुआ, यानी कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो प्राइस इंक्रीज करोगे तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हो गया व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 and MR is negative, MR is negative, then with increase in price total revenue increases and with decrease in price total revenue decreases। अब इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, सिंपल डायग्राम्स की फॉर्म, इस तरह के डायग्राम की फॉर्म में। This is price, this is quantity, and suppose this is the demand curve। अब मैं यही पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज हम एस पॉइंट पर, सपोज ये एस पॉइंट है, एस पॉइंट के हिसाब से ये क्वांटिटी होगी यूएस, ये प्राइस हो गया पीएस, ठीक है। अब सपोज करो एस से हमने प्राइस इंक्रीज कर दिया, पी एम, एम किया ना यहाँ पर, ये एम पर आ गए हैं, एम पॉइंट पर। तो एम पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया पी एम, और इधर देखेंगे तो ये हो गया क्यू एम। तो अब देखो प्राइस में चेंज ज़्यादा हुआ है, क्वांटिटी में कम हुआ है।
यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस वुड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि जितना चेंज प्राइस में हुआ है वो ज़्यादा है, प्राइस जो बढ़ा है वो ज़्यादा बढ़ा है, जिसके कारण क्वांटिटी कम हुई है, यानी कि इंक्रीज इन प्राइस इज मोर देन द डिक्रीज इन क्वांटिटी, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन क्वांटिटी। एंड हैंस कि जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर भी लागू होती है कि ये एडिशन जो हुआ है ज़्यादा हुआ और ये जो सब्सट्रैक्शन हुआ है यहाँ ये कम हुआ है। ये सुनो, ये जो सब्सट्रैक्शन है ये कम हुआ है, तो इसलिए क्या है ये इस तरह का रिलेशन क्यों, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ एडिशन पॉजिटिव था, इसलिए प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू घट रहा है और प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू घटेगा और प्राइस के घटने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है तो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है टोटल रेवेन्यू में, तो प्राइस के बढ़ने पर मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीमेंट कम होगा, इधर की तरफ जाएंगे ना हम, इस यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो मार्जिनल जो नेगेटिविटी है वो कम होगी प्राइस के बढ़ने पर, और प्राइस के घटने पर वो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी इधर को, तो इसलिए क्या है ये नेगेटिव रिलेशन आता है। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ई, इलास्टिसिटी 1 पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। अब देखो इलास्टिसिटी 1 से इस ई पॉइंट से आप के पर जा रहे हो तो भी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, और ई पॉइंट सर एम पर जा रहे हो तो भी टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलास्टिसिटी 1 हो तो एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस इन एनी डायरेक्शन विल लीड टू डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि when elasticity is equals to 1 then MR is 0, therefore any increase or decrease in price should not cause any change in total revenue, कि total revenue में कोई change नहीं होना चाहिए as long as elasticity is 1, as long as elasticity is 1. Is that okay? Hello? Hello? We should not change prices because total revenue is not going to change because marginal revenue is 0. We will not get any positive addition to the total revenue or negative addition to the total revenue. Is that okay? Hello? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि मिड पॉइंट हम ले लेंगे, कोई भी डिमांड कर्व है सपोज, उसका जो मिड पॉइंट है जो कि हमने यहाँ ई लिया हुआ है, तो इसको मैं क्या ले भाई, एक्स पॉइंट ले लेते हैं, नहीं क्या ले, कुछ और ले, बी पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट है। इस V पॉइंट पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, मैं इस V पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, तो प्राइस PV है, क्वांटिटी QV है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन टोटल रेवेन्यू, विल रिमेन एज इट इज। इज दैट ओके? हेलो? हेलो? यस सर। किसी ने कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट है? और shall we proceed?
चलिए ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो आगे देखते हैं। आई होप ये सब जो मैंने आज रिलेशनशिप डिस्कस किया आपके साथ ये आपको समझ आया होगा। एंड नाउ विल प्रोसीड फर्दर। अब जो हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज को हम एक तरीके से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। Here we will see the greater than 1, here this is equals to 1, and here is less than 1. Now in these 3 categories what happens is there are 2 subcategories. 2 subcategories क्या हैं? पहली है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। perfectly elastic demand, and another one is more than unit elastic। यानी कि एक तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया, एक मोर देन इलास्टिक हो गया, यहाँ पर इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक है लेस देन यूनिट इलास्टिक, और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको आप इस तरह से देख सकते हो। सपोज करो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज को मेजर करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफरेंट डिग्रीज को हमें मेजर करना है। तो अगर ये लाइन डिफरेंट डिग्रीज को सजेस्ट कर रही है तो इसके कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सट्रीम पर परफेक्टली इलास्टिक है सपोज, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर, और दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पर है परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर इसके बीच में है इक्वल टू 1 और यूनिट इलास्टिक जिसको हम बोलते हैं, या यूनिटरी समटाइम्स, और इसके बीच में जो है वो है ग्रेटर देन 1, और इनके बीच में जो है वो है लेस देन 1। ये हम कैटेगराइजेशन करते हैं डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड का। इज दैट ओके? Let us see the shape of curves in these cases, in these different cases. अब परफेक्टली इलास्टिक मतलब हो गया कि इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है। यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, यहाँ पर ये 1 हो गई, यहाँ पर ये इलास्टिसिटी 0 हो गई। तो यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो गई। तो इन्फिनिटी पॉइंट पर तो इन्फिनिटी है, इसके बीच में ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इन्फिनिटी है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है। ठीक है, इस तरह से हमने कैटेगराइज किया है। अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं? लेट अस सी दैट। इसका जो कर्व बनता है, कर्व की जो शेप बनेगी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये हॉरिजॉन्टल बनती है, ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है। मतलब कि गिवन प्राइस पर the firm or the individual firm is ready to sell any quantity, that is what it means। तो इस केस में इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाती है। इलास्टिसिटी इन्फिनिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि स्लोप 0 हो जाएगा यहाँ पर,
देखिए इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, P अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप है, तो स्लोप 0 होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप क्या हो गया, 1 अपॉन 0। हेलो, स्लोप अगर 0 है और रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप क्या होगा, 1 अपॉन 0। हेलो, यस Yes, सर। sir. तो एनीथिंग अब इसको अगर मैं 1 अपॉन 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की जगह 1 अपॉन 0 पुट करूं तो P अपॉन 0 आ जाएगा, क्योंकि Q से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो वो क्या लीड करेगा, इन्फिनिटी। यस और नो, जो हमने अभी पीछे देखा ही है। Yes, sir. तो जो परफेक्टली Yes, sir. इलास्टिक डिमांड कर्व होती है उसमें इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हम मानते हैं और वो हॉरिजॉन्टल बनता है। दूसरा रीजन ये है कि ये एक तरीके का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। प्रैक्टिकली कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा कि कोई हमें प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिले जिसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो गई है। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अब क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है, बट ये पॉसिबिलिटी तो है ही, और जब तक ये पॉसिबिलिटी है इट विल बी इन आवर डोमेन। ठीक है, उसके बाद आता है मोर देन यूनिट इलास्टिक। मोर देन यूनिट इलास्टिक में the flatness of the curve will reduce, अब जैसे ही फ्लैटनेस रिड्यूस होगी तो स्लोप होगा वो 0 से पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब there would be some value, not positive exactly, but there would be some value. Slope would be negative, but there would be some value. Suppose ये हो गया इस तरह से। अब इसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। रीजन वही है कि स्लोप कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। सपोज करो 2 है, 1 है, 0.5 है, 3 है, तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यस और नो? हेलो, इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है, लेट अस सी हियर नाउ। अब परफेक्टली इन इलास्टिक में देखते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा। This is price, this is quantity. The demand curve would be vertical, in this case. That means we have been suggesting that irrespective of the prices, price बढ़ रहा है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी है, प्राइस कम हो रहा है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, वही है। तो इस केस में इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। इलास्टिसिटी 0 क्यों होगी? स्लोप इनफाइनाइट हो गया, वर्टिकल लाइन है डिमांड कर्व। यस और नो? इलास्टिसिटी क्या होता है, P अपॉन क्यू, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अगर स्लोप इन्फिनिटी है तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो दिस वुड बी P अपॉन क्यू इंटू में 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी से Q को मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, P अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी। हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, लेट अस सी हियर लेस देन यूनिट इलास्टिक। लेस देन यूनिट इलास्टिक में क्या होगा, दिस इज द प्राइस। सपोज करो डिमांड का वुड बी समवट स्टीपर। अब ये बिल्कुल स्टीप नहीं है बट लेस स्टीपर है, इनफाइनाइट से कम हो गई वैल्यू, और जैसे ही इनफाइनाइट से थोड़ी सी कम होगी वैल्यू तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा यानी कि इनफाइनाइट से कम है पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इस केस में इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर की वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होगी
तो यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी. इज दैट ओके? कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस. इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पर क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस डज नॉट कॉज एनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ क्या है? यहाँ हम लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes infinite परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसलिए क्या है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू दिस कर्व. इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1. अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब हमें इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट करनी है डिमांड कर्व, तो अगर लीनियर डिमांड कर्व है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो आप सभी लोग, लीनियर डिमांड कर्व है तो हम लीनियर डिमांड कर्व ऐसे बनाएंगे डी, और उसका जो मिड पॉइंट होगा उस पर इलास्टिसिटी 1 होगी, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ठीक है. बट ऐसे ही डिमांड कर्व की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. जैसे मान लो कोई डिमांड कर्व ऐसा भी हो सकता है, मैं अलग अलग बना के दूँ भाई. कोई इतना स्टीप भी हो सकता है, कोई ऐसा बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, कोई इस तरह का हो सकता है. तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा, और इसका भी मिड पॉइंट होगा. यस और नो? इस पर इलास्टिसिटी 1 यहाँ है, इस पर इलास्टिसिटी 1 यहाँ है, इस पर इलास्टिसिटी 1 यहाँ है. इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. ऐसी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू स्लोप एंड शेप ऑफ डिमांड कर्व. यस और नो? Yes, sir. तो जो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 डिमांड कर्व होता है, उसकी शेप, उस दिन एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं उसी पॉइंट को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ आज. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप हम बोलते हैं. ठीक है. अब इसका मतलब क्या, अभी हम देख लेते हैं. ये सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है. ये देखिए, इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. Let me change the color to make it with some different thing. Let's take the red color. ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का मतलब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू एट ऑल द पॉइंट्स रिमेन्स द सेम. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप क्या होती है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे कि जो ये पॉइंट है, सपोज करो ये ए पॉइंट है, एक ये पॉइंट है बी, एक ये पॉइंट है सी, और एक ये पॉइंट है स्मॉल डी. ठीक है. ए पॉइंट से भी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, बी पॉइंट से भी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सी पॉइंट से भी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और डी पॉइंट से भी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व जो होता है उसकी फीचर क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इफ यू ड्रॉ एनी रेक्टेंगल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम. डिड यू गेट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, ठीक है. sir. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स द सेम. नाउ हियर
द एरिया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यस और नो, या सेम होगा, यस और नो, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स यस सर। और फ्रॉम एनी पॉइंट। तो in this case, in case of demand curve, in case of demand curve, area of rectangle क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यस और नो, या हम कह लें टोटल रेवेन्यू। भाई इस पॉइंट से जो रेक्टेंगल बनाया, प्राइस आया पी ए, क्वांटिटी आई क्यू ए। भाई वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस को मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी को। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर उस फॉर्मूले से हम जा रहे हैं तो हम ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये जो रेक्टेंगल बना है यहाँ पर जिसको मैंने शेड किया, इसका एरिया क्या होगा, पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सेम गोज विद द पॉइंट बी। अगर बी पॉइंट पर हम हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मुझे बी पॉइंट का बनाना है, जो ब्लू कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, तो इसमें भी जो प्राइस है वो क्या आ जाएगा, पी बी, और यहाँ क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू बी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी अपॉन बी, तो इस पर भी टोटल रेवेन्यू, यानी कि टी आर एट ए पॉइंट, टी आर एट बी पॉइंट, टी आर एट सी पॉइंट, सिमिलरली टी आर एट डी पॉइंट जो होगा दैट वुड बी सेम। तो इसका मतलब क्या, टी आर एट ए वुड बी इक्वल्स टू टी आर एट बी इक्वल्स टू टी आर एट सी इक्वल्स टू टी आर एट डी पॉइंट, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज नॉट चेंजिंग। सी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 देन टोटल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, अभी तो ऊपर पढ़ा हमने। तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डिमांड कर्व होता है उसके हर एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है, यानी कि वो एक ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। तो इस केस में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इज दैट ओके? हेलो, यस सर। बेटे किसी को कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, या ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, किसी ने कोई सवाल पूछना है? हेलो बेटे, कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप में से कोई? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए बहुत है ये। तो आई होप आज जो कराया है आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।